Auzubillahiminashaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to Hassan for HR Pakistani show. Ladies and gentlemen, by the grace of Allah Almighty, I'm getting a very good feedback of my show, Hassan for HR. The people are asking to me that we have to conduct the show on daily basis, which is very, very difficult for me, but I will try my level best. The main objective of my show is to share the positive image of Pakistan to the world. I'm conducting interviews of different professionals as they are sharing their success story and struggle with my followers. My followers on LinkedIn, YouTube, and Facebook. And I know it is a source of motivation for everyone. Ladies and gentlemen, today we'll be having a wonderful, a very special guest. The session, this session would be in two medium. One is Urdu and second is English. So the maximum people can reach to us. You know what? I am super excited today. You know why? Because the guest that we are going to be have today is charismatic personality. I'm excited about the today's session. Today's topic is also very interesting and unique as well. Joining us today, HR Guru. अगर हम बात करें HR idol की, तो for me, he's a HR idol. He's an amazing personality. You know what is special about him? He is a superstar of HR fraternity. He's always helping HR professionals and job seekers as well. Today, he will be sharing his views on employee engagement and nurturing a winning culture. I'm talking about today's guest, and his name is Mashkoor Malik. Mashkoor is having 16 to 17 years working experience in the field of human resource management. He has worked almost in every sector. Mashkoor, it's good to have you here. Thank you so much for joining us today. Assalamu alaikum viewers, and assalamu alaikum Hassan. I'm grateful. Thank you very much. You gave me this chance to come on scene and discussing this interesting topic, employee engagement. और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे. मैं अक्सर अभी आपके जो है वो ये जो आपका शो है इसकी एपिसोड देखता रहता हूँ. So you are doing a great job, माशाल्लाह. You are bringing all professionals on scene, जिससे जो है वो लोगों को मौका मिल रहा है एक दूसरे से जो है वो एक नॉलेज शेयरिंग हो रही है. लोग एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, और इससे जो है वो एक हमारा जो प्रोफेशन है HR फर्टिलिटी का जो एक लोगों का आपस में जो है वो एक राब्ता भी बन रहा है. तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, एंड आई विश यू गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक. आप ऐसे ही इस शो को जो है वो करते चले जाएं, और माय प्रेयर्स आर विद यू कि आप इसको और जो है ना वो सक्सेसफुल बनाएं. Thank you very much, Mashkoor. Thank you very much. अच्छा, Mashkoor is currently working Volca Food in capacity of GMHR. मशकूर के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है और हम लोगों ने एक इदारे में इकट्ठे काम भी किया हुआ है. So Mashkoor, the first question that I would ask you, I know your story, I know your struggle. So today my followers want to know what is your success story? The first question that I want to ask to you then, what kind of difficulties that you have faced when you have started your career? First of all, I would like to share कि जो है वो जब मेरी 2003 में I started my career, and उस टाइम जब मैं इस प्रोफेशन में आया HR में, तो honestly, before that I had some experience in teaching some basic जो है वो कोर्सेज वगैरह मैं कॉलेज में टीच किया करता था. बट HR में, और ये मेरी प्रोफेशनल जो एक जॉब थी, दैट वाज एक्चुअली मैंने शुरू की 2003 में. सो आई रिमेंबर कि उस टाइम पे, उससे पहले मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आई एम गोइंग टू फॉल इन HR, कहीं लैंड करूंगा. बट विद सम मैं आज बड़ा खुल के आपसे शेयर करूंगा विद माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड माय कोलीग्स
कि आई गॉट दैट जॉब विद सम रेफरेंस। एक मेरे भाई थे, उन्होंने मुझे रेफर किया और मैं गया इंटरव्यू के लिए, एंड आई वाज नॉट क्लियर कि मैंने क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई एम गोइंग टू गेट। बट जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे एक वीक में दो इंटरव्यूज हुए। एक बैंकिंग में था और एक मेरा इस प्राइवेट सेक्टर में था, कॉर्पोरेट सेक्टर। सो हुआ ये कि एट द सेम टाइम मेरे दोनों इंटरव्यू थ्रू हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गया, मुझे 2 कॉल लेटर्स आ गए ज्वाइनिंग के। सो देन आई डिस्कस विद माय फैमिली, मैंने कहा जी एक बैंकिंग है, सो बीइंग थोड़ा सा हमारा एक फैमिली इस तरह का है कि उन्होंने कहा कि जी लेट्स नॉट गो टू बैंकिंग साइड, आप इस साइड पे जाएं। मैं जब इस साइड पे आया तो आई स्टार्टेड माय करियर, और आई रिमेंबर वी स्टार्टेड एट द सेम टाइम एंड वी बीन सिटिंग फेस टू फेस ऑन अ सिंगल डेस्क, मुझे याद है। तो जो है ना वो हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के पीछे की तरफ होते थे और हमारे फेसेस एक दूसरे की तरफ होते थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। तो वो मुझे वक्त, वो बड़ा जो हमारे फर्स्ट इनिशियल डेज थे वो मैं आज भी नहीं भूल सकता। और हमारा एनवायरनमेंट इतना लाइवली था, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, और हम जो है वो बड़ा एक अच्छा एक माहौल था उधर। और हमारे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, आई रिमेंबर Mr. Waqar Khadim and I remember Mr. Yusuf Jamshed. So under their supervision, literally today मैं उसमें बिल्कुल कोई वो नहीं करता। मैं आज जो कुछ भी हूँ या मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, तो मेरे जो इनिशियल सुपरवाइजर्स थे, जो शुरू में जिन लोगों ने मुझे जो है वो लीड किया, उनकी इसमें बड़ी जो है ना वो एक कंट्रीब्यूशन है। और कुछ चीजें होती हैं जो आप शुरू वाले डेज में जो आपके अंदर वो एक कर दी जाती हैं, इंजेक्ट कर दी जाती हैं, वो फिर थ्रू आउट द करियर एंड प्रोफेशन आपके साथ चलती हैं। तो कुछ चीजों को मैं अभी भी कैरी कर रहा हूँ, और कुछ चीजों को मैंने साथ साथ पे जिस इंडस्ट्री में मैं गया, जिस जगह पे मैं गया, वहां से जो है उन्होंने पिक किया, एंड देन टुडे आई एम कैरिंग दोस थिंग्स। तो आई रिमेंबर उस टाइम पे मैंने स्टडीज भी, जब मैं HR में आया तो उस टाइम पे फिर मैं एक्चुअली आई वाज बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरा शायद ये था कि मैं कंप्यूटर साइंसेज की तरफ जाऊंगा, लेकिन जब मुझे जॉब HR में मिल गई तो फिर मैंने अपनी डिग्री जो फर्दर MBA की थी वो मैंने HR में की। फिर एक स्पेशलाइजेशन एक और मैंने मार्केटिंग जस्ट टू गेट अनदर नॉलेज मैंने उसमें कर ली। तो फिर मैंने इस प्रोफेशन को जो है ना वो परमानेंटली मैंने इसको पिक कर लिया, और फिर मैंने इसी में ही थ्रू आउट जो है अभी वो 16-17 years, so I'm in HR। फिर मैंने अपनी जो आगे एजुकेशन थी मैंने उसी को ही जो है ना वो कंटिन्यू किया। देन मैं अब्रॉड भी गया, तो अब्रॉड भी मैंने फिर HR में ही अपना एजुकेशन की, मैंने MS किया वहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह with the grace of Almighty Allah and with the prayers of my family, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया इसमें मुझे, और मेरे फ्रेंड्स ने दुआएं की मेरे लिए, मेरे कोलीग्स ने मुझे बहुत बेस्ट विशेस दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद दैट मैं समझता हूँ अगर आप आज मैं कोई अगर काम कंट्रीब्यूशन कहीं पे कर पा रहा हूँ या वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो वो शायद उसी वजह से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट इस वक्त भी जो है ना वो। Great, wonderful. अच्छा मुझको I still remember the whole time that we had together, मतलब वो बड़ा जबरदस्त टाइम था, और I still remember the great leader वकार खादिम साहब, जिस तरह उन्होंने हमें वो बड़ा अच्छा था, जिसमें हमें वकार साहब एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, हमें जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स किस तरह से लेने हैं HR। तो आई मीन वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इनिशियल डेज जो थे जिसमें हमें उन्होंने बताया HR में कि क्या क्या रियल टाइम जो फंक्शंस हैं, इवन लिटरली, एंड आई स्टिल रिमेंबर द स्ट्रगल दैट यू एंड मी हैड। we didn't have the car, हम लोग के पास नहीं थी, and we used to ride on bike, और फिर हम लोग उसमें किस तरह जाते थे। तो आई डू अंडरस्टैंड। तो माशाल्लाह the way that you are growing still, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने याद है, सॉरी आसम मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि सुबह हमने जो है वो 8 बजे घर से चलना है और हमने ऑफिस पहुंचना है,
फिर शाम को 6 बजे के करीब ऑफ करके मैंने स्टडीज के लिए जाना है अपना, और फिर वहां से मैं 11:30 बजे फ्री होता था। 11:30 बजे ऑफ करके फिर 1 घंटे का टाइम, और फिर वो घर जाना, और घर जाके तो यू आर लाइक, आई मीन यू आर डेड। सो फिर मुझे याद है मेरी मदर, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो मेरे लिए वो खाना और वो सारी चीजें उस टाइम उन्होंने तब तक जागते रहना और दुआ करते रहना मेरी खैरियत का। और जब मैंने जाना है तो लिटरली मैं इस पोजीशन में होता था कि मैंने अब कुछ नहीं खाना, बस मुझे लेटने दे, मुझे गिरने दे, और मैं एक वो कमिटमेंट थी। वो एक आपने जब एक टारगेट और एक गोल सेट किया था तो फिर उसके लिए स्ट्रगल की, और मैं 11:30, और मैंने तकरीबन 3 साल, पहले 3 साल मैं इसमें रहा। सुबह 8 बजे निकलना है, रात को 12 बजे के करीब घर पहुंचना मैंने, और कॉन्टिन्यूस इसके लिए मैंने, और सिर्फ ये था कि एक कमिटमेंट है और मैंने इसको फुलफिल करना है, और मैंने इस प्रोफेशन में बस अब आगे जाना है। तो मैं अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं या मेरे और कुछ ऐसे लोग जो इस मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैसेज है कि जब आप किसी चीज के लिए कोई एम बना लेते हैं एंड यू सेट योर टारगेट्स एंड गोल्स, तो फिर उसके लिए डोंट थिंक कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टाइम शॉर्ट है, या आप को जो है वो बहुत उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है, तो वो तो फिर करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो आप अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। सो मैं आजकल देखता हूँ लोगों को बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं लोग कि जी वो चीज़ नहीं है तो वो नहीं है, तो वो बस पे जाना पड़ता है, तो बाइक नहीं है, तो कंपनी की वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं है, तो सर हम कैसे। सो ये चीज़ें अगर आप अपने सामने रखेंगे तो शायद फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो शायद उस टाइम पे ये चीज़ें सोच के फिर हम निकले। और एक बड़ा फैक्टर और था मशकूर, वो ये था कि हम लोगों ने जब करियर स्टार्ट किया तो उस टाइम भी होता था कि यार सैलरी इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करती है लर्निंग मैटर करती है। आज अगर आप देखें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फ्यू इंडिविजुअल, उसमें यह है कि लोग कहते हैं यार कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बाद फिर लर्निंग, सो ये सारी चीजें हैं। आई डू अंडरस्टैंड, और माशाल्लाह यू आर इंस्पिरेशनल स्टोरी। सो मशकूर, लेट्स कंटिन्यू द सेशन। सेकंड क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क टू यू, एंड दैट इज दैट, देखिए मुझे पता है कि आप एचआर में हैं और आप बहुत वर्कहॉलिक हैं और आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। मैंने भी आपके साथ काम किया हुआ है, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब आप लेट सिटिंग करते थे तो आंटी यूज्ड टू कॉल यू ऑन योर मोबाइल कि तुम कहाँ हो, अभी तक आए नहीं हो, एंड यू स्टिल मिसिंग दैट वॉइस। एनीवे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता करे। सो मुश्किल मुश्किल बात यह है कि हम लोग एचआर में हैं तो हमारे लिए टाइम को मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आई मीन, सो आई वांट टू नो दैट कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर टाइम, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि भाभी भी नाराज रहती होंगी और बच्चे भी जो हैं वो कहते होंगे कि बाबा बड़ी लेट आप काम करते रहते हैं। तो वी जस्ट वांट टू नो दैट हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर टाइम। देखिए हसन, मैं हमेशा अपनी लाइफ को जब भी इसमें कोई चीज़ करना चाहता हूँ या मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो मैं हमेशा नेचर को देखता हूँ, कुदरत को, मैं हमेशा वहाँ से चीज़ें लेता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ उसका है, खुदा ने हमें बनाया। बट अगेन मैं जब देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक साइकिल बनाया है, दिन है, रात है, तो वो अपने टाइम पे आ रही है और वो अपने टाइम पे आ रहा है, सूरज और ये सारी चीजें। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें बीइंग ह्यूमन, हम तो अशरफुल मखलूकात, हमें तो खुदा ने बनाया कि भाई आपने तो ये चीजें मैनेज करनी है दुनिया में। तो हमें ये जो टाइम है इसकी अहमियत को मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा टाइम की इंपॉर्टेंस को मैंने इसको वैल्यू दी है और इसको मैंने बहुत वैल्यू किया है टाइम को। मुझे ये हमेशा ये लगा है कि शायद अभी बहुत कुछ करने वाला है, टाइम कम है, तो कम टाइम में कुछ ज़्यादा हो जाना चाहिए और कोई वैल्यू एडिशन कहीं पे हो जाए, कोई बेहतर काम कर जाएं ताकि जो है ना वो एंड ऑफ द डे आपको उसका कहीं पछतावा ना रहे, आप रिग्रेट ना रहे आपको कि आपने टाइम वेस्ट किया। इसी तरह मेरे
फैमिली में भी लोग हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, मेरे और फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं। सो मैं जब भी उनसे बात, अभी भी मेरे बल्कि जो कोलीग्स हैं, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको हमेशा जो वो कहता हूँ कि यार टाइम इज़ एवरीथिंग मेरे ख्याल से। और ये दुनिया भी टाइम पे ही चल रही है। अल्लाह ने भी, खुदा ने भी जो हमें एक वो निज़ाम दिया है, उसने एक टाइम दिया है और उसने एक आपको टारगेट दे दिया और उसने कहा कि इस टाइम के अंदर देखिए हमारी लाइफ भी ये कोई लिमिटलेस तो नहीं है, आपको एक टाइम दिया है और उसने बता दिया है कि इस टाइम के अंदर रहते हुए ये काम आप इसको करें। सो मैं ये समझता हूँ उसी चीज़ को फिर मैं अपने प्रोफेशन में भी अप्लाई करता हूँ, उसी चीज़ को मैं अपनी फैमिली में भी अप्लाई करता हूँ। अभी आपने बात की जैसे कि घर में भी जाहिर है फैमिली है, बच्चे हैं, तो यस मैं जब घर जाता हूँ तो आज दफ़ा ये सवाल तो होता है कि आज लेट हो गए, आज डिनर था, बाहर जाना था, शॉपिंग थी, ये था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एक बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मुझे कभी वहाँ से टफ टाइम नहीं मिला। मैं हमेशा सपोर्ट मिली है मुझे। ऑफ कोर्स वो कहते तो ज़रूर हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन उस तरह का नहीं है कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो, और वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। और मैं शायद इसी वजह से मेरी एक सक्सेस का एक जो अगर आप कहें उसके पीछे जो फैक्टर है वो मेरी फैमिली है, और वो मुझे दे ऑलवेज सपोर्ट एंड दे ऑलवेज टॉलरेट दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसकी वजह से जो है ना मैं समझता हूँ कि मैं बहुत सारे काम जो है ना वो अपने उसको बहुत सारी अचीवमेंट्स में उस वजह से भी कर लेता हूँ। सो टाइम इज मैं समझता हूँ कि हर चीज़ टाइम है। आप मेरे जो अभी भी कोलीग्स हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह का सुपरवाइजर नहीं हूँ या मैं इस तरह का मैनेजर अगर आप कह लें या टीम लीड कह लें मुझे, तो मैं कभी भी इस तरह का नहीं हूँ कि मैं अपनी टीम को बिठा कर तो मैं खुद चला जाऊँ या मैं उनको टास्क दे के तो मैं कहूँ कि आप लगे रहें। आई ऑलवेज ट्राई माई सेल्फ कि मैं उनके साथ मौजूद रहूँ। ये उनकी मोटिवेशन, ये उनकी एक एंगेजमेंट, मैं समझता हूँ कि उसमें एक मैं खुद से ही इसको फील करता हूँ कि मुझे उनके साथ मौजूद होना चाहिए, ताकि जो है ना वो फुली अपने आप को फील करें कि उनकी टीम कंप्लीट है। मैं समझता हूँ अगर मैं उनके साथ मौजूद नहीं हूँ किसी टास्क पे, किसी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, किसी प्रोजेक्ट पे, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो टीम इनकम्प्लीट होती है। तो मैं आई एम ऑलवेज विद दैम। बेशक वो थोड़ा कभी लेट काम भी करना है, कभी जल्दी आना है, और मैं टाइम अपने प्रोफेशन में टाइम को कुछ इस तरह मैनेज करता हूँ कि मैं अगले दिन को आज के दिन में मैं प्लान करके जाता हूँ कि आज मैं इतने बजे निकल रहा हूँ, मैंने घर जाके ये करना। घर जाता हूँ तो मैंने मोबाइल अपना अगले 2-2.5-3 घंटे के लिए साइड पे रख देना है। फिर मैंने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जरा मैंने इंगेज हो जाना है। फिर ये है कि मेरी जरा रूटीन है, मैं जॉगिंग के लिए भी निकलता हूँ, इसके लिए वॉक के लिए भी निकलता हूँ, तो एक टाइम सेट किया हुआ उसको मैं फिर फॉलो करता हूँ। फिर उसके बाद भी कोई मैसेजेस कोई इस तरह के आते हैं रिलेटेड जो है वो आपके जॉब, तो वो फिर उसको देख रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। बट अगेन अगले दिन को मैं आज के दिन में मैनेज करके प्लान करके जाता हूँ, तो ही आप उसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। सो दिस इज हाउ एक्चुअली मैनेजमेंट है। वंडरफुल मशहूर, वंडरफुल। खैर इंस्पिरेशनल तो आपकी स्टोरी है ही है। आज एक और पता चल गया कि माशाल्लाह ये भाभी भी बहुत सपोर्ट करती हैं आपको, विच आई थिंक लकी इनफ, क्योंकि अक्सर हमें ये शिकायत रहती है। तो क्रेडिट गोज टू भाभी। तो ये क्लिप जरूर भाभी को दिखाइएगा, ये उनके लिए, ठीक है। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा मुझको अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की। हमें काफी क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे तो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे भी लोगों ने जो है वो कई क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर किए। मेरे शो का फॉर्मेट ये है कि मैं लाइव क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछता, तो हम लोग जो क्वेश्चंस आए होते हैं तो वही हम जो है वो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर टॉपिक इन दैट व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट? वेल मैं अभी इससे पहले कि हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे जाएं, मैं समझता हूँ पहले हम सिर्फ इंगेजमेंट जो वर्ड है इसकी जरा डेफिनेशन को या इसके मीनिंग्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें। जो इंगेजमेंट है एक्चुअली, जैसे हम नॉर्मली हमारे रूटीन लाइफ में भी कहते हैं ना, इंगेज हो गया या एंगेजमेंट हो गई इन दोनों की,
सो इसके जो मीनिंग्स हैं वो है व्हेन यू आर इन्वॉल्व with someone or some place physically, mentally, and emotionally. It means you are engaged. When it comes to the workplace, then it is called employee engagement. And then employee engagement, of course, is when your employees, when your people are emotionally and mentally committed to the organizational goals and their responsibilities and their jobs, means they are engaged employees, and we call it employee engagement. And honestly, I'll share with you this concept and this engagement thing has been really misunderstood by the industry, by the organizations, by the professionals. और इसीलिए इस पे कोई इतना कम से कम अगर मैं अभी पाकिस्तान की बात करूं तो शायद इस पे इतना काम नहीं हुआ है, और ना ही इस पे कोई इतनी ज्यादा बात की जाती है, और ना ही इसके लिए कुछ जो है वो काम किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर हम देखें, इसीलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कभी कोई सर्वेज की कोई रिपोर्ट आपके सामने भी नहीं आई होगी कि वो जो है वो जैसे वेस्ट में जाएं तो आपको गैलप के सर्वेज मिल जाते हैं, और सर्वेज मिल जाते हैं, उसकी आपको फिगर्स इवन मिल जाती हैं। अगर मैं शेयर करूं तो जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वेस्ट होते हैं पुअर प्रोडक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस में। बिलियंस ऑफ, अगर मैं एग्जैक्टली फिगर अगर आपको दूं तो 400 to 500 बिलियन डॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ये इकोनॉमी को नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्री को नुकसान होता है बिकॉज ऑफ डिसएंगेज्ड और पुअरली एंगेज्ड एम्प्लॉइज की वजह से। अगर मैं सर्वे रिपोर्ट्स अगर मैं आपसे रिजल्ट शेयर करूं तो अराउंड 80% जो एम्प्लॉइज या वर्कफोर्स आपकी वो कहते हैं कि डिसएंगेज्ड और पुअरली और इनइफेक्टिव अगर आप उसको कहें आपकी जो है वो वर्कफोर्स होती है, जिसकी वजह से कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को इससे काफी नुकसान जो है ना वो होता है एवरी ईयर। मैं ईयरली ये बात कर रहा हूँ। सो इस पे बहुत जो है वो काम होने वाला है, और मेरे ख्याल से पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, दे मस्ट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज। और अब हमारे यहाँ नॉर्मली ये समझा जाता है कि शायद जॉब सेटिस्फैक्शन इज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो वो एंगेज है। नो, इट इज नॉट। It is absolutely different. It is 180-degree different. Engaged employee can be happy employee, but happy employee can never be engaged employee. अगर आप हैप्पी एम्प्लॉय और सेटिस्फाइड एम्प्लॉय की बात करें तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सेटिस्फाइड एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मिलेंगे। वो बस सुबह जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, एंड दे आर लाइक हैप्पी, ओके, कमिंग बैक होम ऑन टाइम एंड स्पेंडिंग टाइम देयर एंड देयर, और फिर एक अगला बिजनेस भी कर रहे होते हैं एडिशनल साथ में, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। तो वो लगता है कि दे आर, बट अगेन दे आर नॉट एंगेज। उनकी पुअर परफॉर्मेंस, पुअर एंगेजमेंट की वजह से आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती सो इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऐसी चीज़ें अलाउ कर दें जो दे वांट कि इससे शायद उनकी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं हो, दे डोंट केयर, तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से वो एक इंगेज एम्प्लॉई आप नहीं अपने हाथ देखते, वो सेटिस्फाइड एम्प्लॉई तो हो सकता है। सो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, व्हाट आर द रीजंस behind these, I mean, disengagement, employees and workforce. So मैं सबसे बड़ा जो इसमें एलिमेंट है, फैक्टर है, that is the communication gap.
एंड वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन गैप, इट नेवर मीन्स लाइक कि ये शायद सीईओ ने करना है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने करना है या मैनेजिंग डायरेक्टर ने करना है या टॉप मैनेजमेंट ने ही कम्युनिकेशन। नो, एट एवरी लेवल, on your level, on my level, or supervisor level, or between the colleagues, or among the teams, or among the departments, unblock the communication. जैसे अगर हम बोलें, so एक frequent और free और open communication जो है, ये ना होने की वजह से जो है ना वो disengagement जो है वो create होती है in companies. So ये मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे जब आप मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं करेंगे अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने जो है वो वर्कफोर्स को या अपने अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, और अगर आप उनको नहीं बताएंगे कि उनके टारगेट्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो शायद उस सेम के लिए, वो पर्पस के लिए वो एफर्ट्स भी नहीं करेंगे। सो फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए लोग आपसे कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको रिस्पांस नहीं दे रहे, आप उनको फीडबैक नहीं दे रहे, तो एक टाइम के बाद वो भी जो है ना वो उस चीज को छोड़ जाते हैं, एंड देन दे स्टॉप कमिंग टू यू एंड दे जस्ट यू नो एक रूटीन में टाइम गुजारना शुरू हो जाते हैं। एंड whenever they find a place outside or across the road, they will leave you. और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अभी अगेन हम बात तो करते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत आपने सुना होगा दुनिया में, और हमारे यहाँ भी बहुत इसकी बहस होती है, बट मैं समझता हूँ डिसएंगेजमेंट में या एम्प्लॉय एंगेजमेंट में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप वो काम जो शायद एक जो रिसोर्स आपने डिप्लॉय किया है वो उससे रेलिवेंट नहीं है, तो उससे भी डिसएंगेजमेंट क्रिएट होती है, वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है या वो उसके लिए फिट नहीं है, तो भी मैं ये समझता हूँ, दिस इज माय पर्सनल उसमें है कि फाइंडिंग है कि ये भी एक फैक्टर बनता है डिसएंगेजमेंट का आपके यहाँ। फिर उसमें आप वो पैशन नहीं डाल सकते, वो आप उसको जो है वो उस तरह उससे वो रिजल्ट्स नहीं ले सकते जो एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा, तो उससे जो आउटकम्स आ सकते हैं मेरे ख्याल से। अगेन मैंने फीडबैक की बात की, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आप अगेन एंड अगेन अपने लोगों से बात करें, उनको बताएं, उनको कोच करें, उनको मेंटोर करें, उनको फीडबैक दें और उनको टू कीप देम ऑन द राइट ट्रैक, और उनको सपोर्ट भी करें, उनको हेल्प करें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। मैं समझता हूँ कि दिस इज अनदर फैक्टर जिसमें हम लैग कर रहे हैं। I just want to add कि करियर ग्रोथ जो है नॉर्मली हम बात तो करते हैं, लेकिन हम वो चीजें, वो पाथ, वो फ्यूचर हम लोगों को दे नहीं पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से people got stuck at some point and then they start looking outside, and whenever they see something better than they have, they move, they leave you, और उसकी वजह से organizations को काफी उसका लॉस होता है। एंड फिर आप देखें तो मैं समझता हूँ ये कोई होलिस्टिक एंड कलेक्टिव अप्रोच से आप इंगेजमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। यू हैव टू सी इंडिविजुअल्स, engagement, yes, वो आपको उस तरह देखना है। कुछ लोग नया स्किल सीखना चाहते हैं, आपको उस तरह उनको लेके चलना है। जो वो नया स्किल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, अपना जो है वो एक न्यू एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं चीजों के ऊपर, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ही वो जो है वो अपने आप को जो है वो समझेंगे कि कंपनीज वैल्यूइंग देम एंड कंपनीज केयरिंग अबाउट देम। और उस वजह से भी बाज दफा लोगों को नया स्किल सीखने को नहीं मिलता। एक मल्टी स्किल जो है वो हम जरा चेक कर लेते हैं। सो द मशकूर वाज शेयरिंग कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट द पार्ट इज मिसिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां भी होता है कि लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस तरह से हैं और क्या होंगी। तो मशकूर हैज कवर्ड कि कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है।
Hey Mashkoor, we were missing you badly. Please continue. Yeah. Please continue. It's all right. It happens. Technology sometimes, Yeah. टेक्नोलॉजी का हमेशा फायदा नहीं होता है, कुछ नुकसान भी होता है. So Yeah, it happens. But again, we are Please back. continue. I just want to add Again, Vishwa, before going, I just want to add Sure. few things. You rightly said that communication is very important. हमारे ये अलमिया होता है कि we don't have any communication metrics. हमें पता ही नहीं है कि हमने मंथली रिव्यू, वीकली रिव्यू या टाउन हॉल मीटिंग्स इस तरफ भी जाना है. इस नाम की भी कोई चीज होती है. हमने ये भी नहीं पता होता कि हमने किसी बंदे को रखना है और हमने उससे ये काम करवाना है. हम रख के डिसाइड करते हैं कि हमने उससे काम क्या करवाना है. अल्टीमेटली यहाँ से वो डिसंगेज हो जाता है और उसको फिर होता है यार कि ठीक है टाइम गुजारो एंड देन विल सी. और बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मुझे याद है कि वन ऑफ द सीजन नेचर प्रोफेशनल शेयर्ड विद मी कि देखिए जी एक दफा उसको सीईओ ने बुलाया और उसको कहा कि यार देखो ये मैंगो पार्टीज, ये बर्थडे पार्टीज और ये किड्स डे, फैमिली डे, दिस इज नॉट engagement activity. I want real time contribution from HR department. मुझे बताओ कि करना क्या है. और आज लिटरली आपके सेशन से मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि भाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट ही नहीं है कि आप मैंगो पार्टी रख लें, आप जो है बर्थडे. दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सीईओ कि भाई तुम ये वाला गैप जो है उसको खत्म करो. जी मशकूर, ओवर टू यू. Yes, Mashkoor, we are live again. all right, we are back again. Yeah, thank you very much, Hassan. I think we lost some कुछ signals का issue था, so that is why we lost this conversation in between. So actually जो मैं बात कर रहा था वो कि disengagement होती क्यों है. So we were talking about those factors actually. So जो आपने अभी communication gap की बात की, तो जो सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, 90% लीडरशिप जो है दे लैक इन कम्युनिकेशन. सो सबसे बड़ा मसला जो कि कम्युनिकेशन का ही है डिसएंगेजमेंट में. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉर्पोरेशन में जो है ना, वो जो लीडरशिप का एक कम्युनिकेशन का गैप है, दैट बिकम्स अ रीजन ऑफ लाइक डिसएंगेजमेंट फॉर द पीपल. क्योंकि जब तक उनको कोई चीज सही बताई ना जाए, कम्युनिकेट ना की जाए, उनको ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पर्पस अगर ना बताया जाए. मैं आपसे एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल एक शेयर करता हूँ. मैं अक्सर अपने कोलीग्स के साथ शेयर करता हूँ. नासा इन अमेरिका, जॉन कैनेडी ने एक दफा नासा को विजिट किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट, एंड ही वेंट देयर एंड वाज वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड ही फाउंड अ जैनिटर देयर, अ स्वीपर, एंड ही वाज मॉपिंग ऑन द फ्लोर. वो सफाई कर रहा है और वो फ्लोर को इतना चमका रहा है, इतना वो मस्त है उसके अंदर, पैशनेटली जो है ना वो उसको लगा हुआ. एंड जब वो जॉन कैनेडी उधर से गुजरा तो उसने पूछा उससे कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आई मीन व्हाट इज योर जॉब. तो उसने बड़ा जबरदस्त आंसर किया उसने. एंड लिटरली इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट. अगर हम बात करें तो उसने कहा कि आई एम हेल्पिंग टू पुट अ मैन ऑन द मून. So this is how he was living the purpose of the NASA and the purpose of his his duty there or responsibility, या उसको जॉब दी गई थी, या उसको जो एक पर्पस बताया गया था कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मिशन क्या है, हमने करना क्या है, हमने एक बंदे को चांद पे भेजना है, तो उसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं. तो he was literally वो फ्लोर साफ कर रहा है, बट उसके जहन में क्या चल रहा है कि हमने जो है किसी को चांद पे भेजना है. So he was actually living the purpose. He was living the communication, उसके साथ जो की गई उस उधर के ऑफिशियल्स ने उसको बताया. So this is how we create the employee engagement. इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की, ये समझना बहुत जरूरी है. इम्पैक्ट क्या होता है? हम समझते हैं कि बस लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है. ऐसा नहीं है. 80% सर्वेज ये कहते हैं, रिजल्ट्स ये कहते हैं, 80% लोग किसी भी टाइम आपको छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं. आपकी वर्कफोर्स जो है, दैट्स अ ह्यूज नंबर. वो किसी भी टाइम आपको, जैसे ही उनको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाए, बिकॉज दे आर नॉट
दे आर नॉट फुली इंगेज्ड विद यू। इसी तरह जैसे मैंने पहले शेयर किया कि 500 बिलियंस का ईयरली अक्रॉस द वर्ल्ड नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है कंपनीज को, इकोनॉमीज को। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ डिसएंगेज्ड पीपल वर्किंग इन द कंपनी। इसी तरह आपके लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दैट इज अनदर कॉस्ट फॉर यू, एक हैसल है। आपका डिसएंगेज्ड जो बंदा है, रिसोर्स है, वो जा रहा है और उसकी जगह नया रख रहे हैं और आप इसी में लगे हुए हैं। यू आर नॉट एबल टू डू अदर प्रोडक्टिव थिंग्स, सो प्रोडक्टिविटी लॉस तो आपका हो रहा है। सो दैट इज अनदर रीजन जिसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि जो एक आपका इम्पैक्ट आता है। सो मैं क्विकली, बिकॉज हमने टाइम हमारा जो है उसके अंदर रहते हुए थोड़ा सा मैं टच कर दूं कि इसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है एंड किस तरह हम जो इंगेजमेंट को प्रमोट कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको एनहेंस कर सकते हैं। पहले तो आप यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से लोग हैं। जो लोग चुप रहते हैं, ज्यादा एक्टिवली इंगेज नहीं है, दे आर साइलेंट। साइलेंट होना समटाइम्स अच्छा है, लेकिन आप देखें कि कोई इनपुट नहीं देते, कोई उनकी तरफ से कोई वैल्यूएबल, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा जो है वो आ नहीं रही है, कोई सजेशन नहीं आ रही उनकी तरफ से, और वो आपको इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे चीजों में। फिर आप देखिए लोग लेट आने वाले, जल्दी चले जाने वाले, दे आर नॉट फुली एंगेज इन देयर वर्क। क्या तो उनको वो पसंद नहीं है या ओवरबर्डन है, समथिंग लाइक दैट। सो कुछ लोग आप देखेंगे उनको नया काम दिया जाए, दे आर वेरी रिलक्टेंट कि नया काम, नया स्किल सीखने में दे आर वेरी रिलक्टेंट। सो वो लोग आपने आइडेंटिफाई करने हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करते हैं। कुछ लोग आते ही मंडे को बहुत हैवी अपने ऊपर वो कर लेते हैं कि यार ये फिर शुरू हो गया है, हफ्ता शुरू हो गया, एंड एट द एंड ऑफ द वीक वो आपको बहुत लगेंगे यार शुक्र है जहाँ छुट्टी में। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई साइलेंटली, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम। सो ये चीजें हैं। अच्छा, ये होगा किस तरह? व्हेन पीपल थिंक कंपनी उनको रिस्पेक्ट कर रही है, कंपनी उनके, देखिए हम अपनी वैल्यूज बनाते हैं, अपना विजन, अपना मिशन, ये चीजें बहुत दीवारों पे हमने छापी होती हैं। वी पेस्ट देम ऑन द कॉरिडोर, इन द कॉरिडोर्स, ऑन द वॉल्स, और प्रिंट करके भी। लेकिन जब तक आप उनको रिस्पेक्ट और केयर देते नहीं है, दे डोंट फील लाइक वर्किंग इन अ फैमिली। हम फैमिली वर्क की बात तो करते हैं, कंपनी को बस एक फैमिली के नाम से जोड़ दिया जाता है, बट वी डोंट रियली मीन इट। सो रिस्पेक्ट एंड केयर ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको मेंशन करते हैं तो उसको उस तरह आप एक्सरसाइज भी करें विद इन योर कंपनी। लोगों को करियर पाथ दें, उनको आगे उनका फ्यूचर बताएं, टेक देम एज पार्ट ऑफ द कंपनी, और किसी कंपनी सक्सेस में उनको इन्वॉल्व करें। रिकग्निशन, एप्रिसिएशन जो है वो एक मैं ये समझता हूं कि एंगेजमेंट इज नॉट समथिंग कि आपने किसी बंदे को पकड़ के आपने उसको ठीक करना है। आपने एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, एंगेज्ड एनवायरनमेंट, जिसमें सब लोग अपने आप को फील करें, जिसमें उनकी रिस्पेक्ट भी हो, केयर भी हो, अच्छा काम भी करने को मिले, उनको नया स्किल भी सीखने को मिले। और मैं ये समझता हूँ ये एंगेजमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन। जब बंदा आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, कि आपने उसको किस तरह वेलकम किया, किस तरह आपने उसको इंटरव्यू किया, किस प्रोसेस से वो गुजरा है, और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है या नहीं होता है तो भी आप उसको किस तरह, जो वो रिस्पेक्टफुली आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है तो उसका पहला दिन कंपनी के अंदर किस तरह है, उसको आप किस तरह वेलकम कर रहे हैं, किस तरह आप उसको पहले दिन से केयर दे रहे हैं। सो दैट मैटर्स अ लॉट। वहीं से उसका एक जर्नी स्टार्ट होता है और वहीं से उसकी एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक वर्ड यूज होते हैं फ्रेंडशिप की बात हम करते हैं, जिसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, फ्रेंडशिप, मेंटरशिप एंड द लीडरशिप। सो आपको इस तरह का माहौल रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी वर्क प्लेस पे। लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाएं, एक दूसरे के साथ बात करने को जो है वो दे मस्ट लाइक इट। अपनी चीजों को शेयर करें, अपने बाज दफा अपनी जो है वो सोशल एक उनकी लाइफ होती है उसके बारे में भी डिस्कस करें, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। बाज दफा प्रोफेशनल तो होता ही है बिकॉज दे आर एट वर्क। सो
लोगों को कोच करें, काउंसल करें, मेंटोर करें उनको जो पार्ट मिसिंग है हमारे यहाँ। मेंटोर हम समझते हैं हमेशा कोई आके हमें मेंटोर करे तो नो, आपको खुद से भी आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहां से हेल्प मिल सकती है। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, लोगों को ये करेज दें आपके लोग खुद आइडेंटिफाई करें कि मुझे कहां से सपोर्ट, कहां से हेल्प, कहां से मेंटरशिप मिल सकती है। सो इस तरह का आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एंड देन ऑफ कोर्स लीडरशिप, और जो जैसे मैंने बात की, लीडरशिप इज नॉट दैट इजी। एक सिंपल वर्ड नहीं है कि एक जनरल मैनेजर और एक मैनेजिंग डायरेक्टर इज लीडर। एवरीबडी इज लीडर एट हिज लेवल, जहां भी वो काम कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि लीडरशिप इज वेरी मच कनेक्टेड विद योर बिहेवियर। ये बिहेवियर एक एटीट्यूड का नाम है। अगर आप अपने लोगों को कहते हैं कि टाइम पे आना, तो आपको भी टाइम पे आना पड़ेगा। अगर आपने उनको एक एक्स्ट्रा काम दिया तो यू हैव टू बी विद देम, जो मैंने अभी बात की थी शुरू में, कि आपको उनके साथ पे टाइम स्पेंड करना है। फिर ही आप जो है ना वो एक ट्रू एक लीडरशिप शो कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये आप करेंगे, एक एनवायरनमेंट एंगेजमेंट का क्रिएट करेंगे, तो आप इंगेज्ड वर्कफोर्स या इंगेज्ड एम्प्लॉइज अपने पास देख सकते हैं कंपनी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स इसके जो फायदे हैं वो कंपनी की ग्रोथ भी है, लोगों की पर्सनल ग्रोथ भी है। इसी तरह आपकी एम्प्लॉयर की एक जो है वो मार्केट में और लोगों की नजर में एक उसकी रेप्यूट, ये बहुत उसकी वजह से जो है वो इनहेंस हो सकती है। उससे वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। एक जैसे हमने विनिंग कल्चर की बात की, परफॉर्मेंस कल्चर की बात की, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो एक इंगेज्ड लोग ही एक वो कल्चर क्रिएट करते हैं, वो बना सकते हैं। कल्चर इज अगेन नॉट समथिंग यू कम इन द मॉर्निंग एंड यू जस्ट switch on and culture is changed. No, it's a combination of many things. It's a combination of different, like आप बात करें तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें जैसे मैंने केयर की बात की, जिससे मैंने करियर पाथ की बात की, तो जिसमें मैंने रिस्पेक्ट की बात की और ओपननेस की बात की, कम्युनिकेशन की। सो ये सारी चीजें करके ही यू क्रिएट दैट कल्चर जिसमें लोग जो है वो फ्लश करते हैं, फिर कंपनी ग्रो करती हैं, और इससे जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस को इससे फायदा होता है, रिटेंशन लोगों की बढ़ती है इसके। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों का, और अगर आप सर्वे रिपोर्ट्स उठाएं तो कंपनीज विद इंगेज्ड वर्कफोर्स are 21% more productive and profitable compared to those who actually have poorly engaged or disengaged people. So इसका ultimately bottom line जो है इससे इफेक्ट होती है कंपनीज। सो मैं ये समझता हूँ इस पे बहुत काम होने वाला है, स्पेशली इन आवर कंट्री और इन आवर रीजन। वी हैव टू वर्क ऑन दिस। इससे हम जो है वो बहुत इससे फायदा उठा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और इससे बोथ साइड्स, एम्प्लॉय साइड एंड द कंपनी साइड, बोथ साइड्स वी कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट। वंडरफुल फीडबैक, वंडरफुल सेशन। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, आई वुड जस्ट वांट टू ऐड कि हम लोग पहले भी ऑनलाइन थे, बट नेट की वजह से हम दोबारा से रिकनेक्ट हुए हैं। तो जो पहला सेशन था हमारा, यू कैन सी माय फेसबुक जो अकाउंट है वहां पर आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे आई विल अपलोड द होल सेशन। सो मशकूर, वंडरफुल। अच्छा मशकूर, एक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क। आई नो कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 30 मिनट्स हमने पहले वहां देखे थे। मैंने तो खैर सेशन को रैप अप कर दिया था, लेकिन आपका आइडिया बिल्कुल ठीक था कि हमें दोबारा से इसको जो है ना वो कंप्लीटली एक एंड करना चाहिए, विच इज आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट। सो मशकूर, होता ये है कि जब हम किसी भी एम्प्लॉय को रखते हैं तो शुरू में वो जो एंगेजमेंट है, जो एक्साइटमेंट है, वो बहुत अच्छी जबरदस्त होती है, एम्प्लॉय की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, आई वांट टू नो, लोग भी हमें देख रहे हैं, कि वो एक्साइटमेंट वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है।
एम्प्लॉयर की साइड की तरफ से भी और एम्प्लॉयज की साइड की तरफ से भी. आई मीन सो वी वांट टू नो दैट कि वो एम्प्लॉय डिसएंगेज क्यों हो जाता है. देखिए उसमें जैसे अभी मैंने कुछ फैक्टर्स आपसे शेयर किए थे कि जब एक न्यू कमर आता है तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी कुछ कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, उसमें जब वो एक मिसमैच कहीं आता है या वो गैप आता है, तो उस वजह से ये इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट जो है ना वो बनती है. इसको मैं ये समझता हूँ कि इंगेजमेंट बना लेना कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं होती, लेकिन इसको मेंटेन रखना इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसको कंटिन्यू रखना और इसमें बैलेंस रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अगेन ये बोथ साइड्स पे होता है. कुछ कंपनी की तरफ से कि आप उसको कोई नया स्किल, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग नया स्किल सीखना चाहते हैं, अगर एक सर्टेन टाइम के बाद वो उसने जो काम आपने दिया है एंड ही इज जस्ट यू नो वो रूटीन में आ गया है एंड ही इज पर्सन लाइक. और जैसे मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल को आपको देखना होगा कि उसकी नीड्स क्या है. यू हैव टू सी कि इंडिविजुअल्स की नीड क्या है. अगर आप वो देखते रहे, उसको आइडेंटिफाई करते रहे और उसके मुताबिक आप उसको वो प्रोवाइड करते रहे, तो ही विल रिमेन एंगेज्ड. और जहां पे आपने गैप क्रिएट किया तो डिसएंगेजमेंट क्रिएट हो गई और उससे फिर जो है वो लॉस के चांसेस वो बढ़ जाएंगे. Great. Wonderful session, Mashkoor. Thank you very much for your valuable feedback, input and support. I think कि आज हमने इस सेशन में रियल टाइम बहुत सारी जो चीजें हैं वो लर्न की हैं. Thank you, Mashkoor, for joining us. Thank you very much, Hassan. It was a pleasure, you know, talking to you after a long time. It was really nice speaking to you. And again, wish you all the best for upcoming sessions. और inshallah we will remain in touch. We met again after so many years, but again बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इंशाल्लाह whenever मैं इंशाल्लाह इसको देखूंगा अभी, और I would like to you know have some feedback on that. हमारे viewers जो हैं, and if they have still they will have some questions, so I will be available you know anytime, so हम उसको कर सकते हैं, no problem. Great. Wonderful. So thank you very much once again. Assalamu alaikum. Wonderful. Okay, ladies and gentlemen, I just want to wrap up the session. मशकूर ने जिस तरह आज हमें बताया, देखें मशकूर ने आज पूरे सेशन में एक बड़ी प्यारी बात देखी. उसने कहा कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप लोगों को बताएं कि आपके एक्सपेक्टेशंस ये हैं. आप चाहते हैं कि लोग इंगेज रहें, तो आप लोगों को बताएं कि यार आप हमें बताएं कि हम किस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं. व्हाट वैल्यू दैट वी कैन ऐड यू फॉर यू. अच्छा, दूसरी चीज मशकूर ने जो हमें बताई वो है मेंटोरशिप. आई मीन दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट. मुझे नहीं पता था, मैं तो मेंटोरशिप को ही देखता था. तो आज हमें एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला. मेंटोरशिप, मेंटोर से फ्रेंड और मेंटोर एंड देन लीडर. तो आई मीन इट्स अ वंडरफुल सेशन. मशकूर का बहुत शुक्रिया. उन्होंने आज हमें ये बताया कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट को हम किस तरह एनहांस कर सकते हैं, और अगर हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पूरा शो YouTube चैनल पे मेरा कंप्लीट ये शो आप जो है वो वहां पर ये एपिसोड वहां पर देख सकते हैं. मैं आई विल अपलोड ऑन YouTube इंशाल्लाह ताला. अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग us, and inshallah ta'ala on coming Tuesday I'll be online with new guests, new topic and new show. पाकिस्तान जिंदाबाद. दुआओं में याद रखिएगा.